अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन. Our previous lectures were based upon the replication. Replication was the first step of gene expression, while transcription is the second step, and the last one is the protein synthesis or the translation. In this lecture, we are going to see how the RNA formation takes place. In the transcription, the DNA replicate and divided into the two cells, while in transcription, the RNA formation takes place. So here in the animation, you got an idea that how the transcription take place. Let's start with the definition of the transcription. The question is, what is transcription? In the easiest way we can say that, or in the simplest way we can say that transcription is the formation of RNA. So formation of RNA is known as the transcription. The word transcribe means to copy or write down the information. So in transcription there is a word that is transcribe, which means to copy or to write down the information. And so transcription is the process of transcribing the genetic information stored in DNA into RNA. सो मीन कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए में स्टोर होती है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, वो ट्रांसक्राइब करती है इनटू द आरएनए. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस. आफ्टर डीएनए gets transcribed into messenger RNA, the RNA gets translated into protein. So the first step of towards protein synthesis is the transcription, and then is the translation. Translation is that in which the messenger RNA is translated into the protein. So transcription is the formation of RNA from the genetic information that's stored in the DNA. So the genetic information stored in the DNA transcribed into the RNA. So this is the simplest definition of the transcription. Here in the image you can see that डबल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए. ठीक है, स्टार्ट में जो है ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. और इसी तरह से जिस तरह से रेप्लिकेशन में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो वो क्या होता है, वो अनवाइंड करता है. ठीक है, जब वो अनवाइंड करता है तो रेप्लिकेशन फोक बनता है जस्ट लाइक दिस. तो यहाँ पे भी जब डीएनए जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, अनवाइंड करेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब डीएनए जो है वो अनवाइंड किया तो रेप्लिकेशन फॉर्क में यहाँ पे एक जो है वो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना. और ये एक्टिविटी तब स्टार्ट होगी जब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करता है डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड के साथ. तो वहाँ पे आरएनए फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगी. तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट व्यू ऑफ द आरएनए फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. For example, let me understand with the help of the following easiest explanation. For example, you are studying a book that is and writing down the notes. आप एक किताब पढ़ रहे हो और उसमें से कुछ नोट्स बना रहे हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. यू डोंट कॉपी द इंफॉर्मेशन वर्ड टू वर्ड, यानी कि हम उसकी वर्ड टू वर्ड जिस टेक्स्ट बुक से हम नोट्स बना रहे हैं उसको हम एग्जैक्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो है वो कॉपी वर्ड टू वर्ड जो है वो टेक्स्ट नहीं करते. इंस्टेड यू टेक डाउन अ वर्जन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड. क्या होता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से हम उन नोट्स में से देख रहे हैं उस टेक्स्ट बुक्स में से, तो उसको अपने स्टाइल से लिख लेते हैं. तो इसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि हमने नोट्स पढ़े कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, दिस इज़ द
original information. For example, what is transcription? The word transcribe generally means to copy the process into to copy the information into the RNA, ठीक है ना. That is the original information of DNA. अब हमने क्या करना है, इसको ट्रांसक्राइब करना है, अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है. तो हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन टर्न्स द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इनटू आरएनए. So transcription is the first step in protein synthesis. After DNA gets transcribed to messenger RNA, the messenger RNA get translated into protein. तो ये हमारे नोट्स हैं. दिस इज़ द RNA. तो क्या है, हम ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करते हैं इनटू द RNA. So this is the simplest explanation that how the transcription works. In this example, the textbook would be DNA, your notes would be RNA, and you would be the RNA polymerase that are converting the DNA information into the RNA. So this is the all about the process of overall process of the transcription. Now let me explain you what happen when DNA is transcribed. Actually ये सब कुछ होता कैसे है. Here in the animation you can see that for example, here is the template strand. Template strand is the strand. आप देख सकते हो कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है. ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहाँ से आया, जब डीएनए जो है वो अनवाइंड करता है तो उसमें से वन पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, जहाँ पे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है. तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट क्या है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए जो कि बाइंड करता है डीएनए स्ट्रैंड के साथ, ठीक है. और इसको हम तो ऊपर जो आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा है, डैट इज़ द आरएनए पॉलीमरेज. सो आरएनए पॉलीमरेज आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट और द आरएनए. सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज is that help in the formation of the RNA. Our next question is what happen when the DNA is transcribed. Actually होता क्या है जब DNA जो है वो ट्रांसक्राइब करता है. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ स्ट्रैंड ऑफ RNA दैट इज़ कम्प्लीमेंट्री टू वन ऑफ द ओरिजिनल DNA स्ट्रैंड इज़ क्रिएटेड. तो क्या होता है, RNA का एक कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, जो कि ओरिजिनल DNA स्ट्रैंड के क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री होता है. दिस स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए गोज ऑन टू गेट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. तो बाद में यही जो मैसेंजर आरएनए है डैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. डीएनए एंड आरएनए आर मोस्टली सिमिलर. अब इनका स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या है, तकरीबन सिमिलर है. बोथ आर द न्यूक्लिक एसिड बट डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड वाइल आरएनए इज द सिंगल स्ट्रैंडेड. So one of the biggest difference between the DNA and RNA is that DNA is present in the double helix form while the RNA is present in the single strand. The other major difference is that DNA contains cytosine, guanine, adenine and thymine, but in RNA the uracil is present instead of the thymine. तो जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो तीन तो सिमिलर हैं जो कि डीएनए में प्रेजेंट होती हैं, डेट इज़ एडेनिन, गवानिन एंड साइटोसिन. जबकि डीएनए में जो थायमीन प्रेजेंट होती है वो रिप्लेस कर जाती है यूरासिल में इन द आरएनए. सो आरएनए is can be considered as a disposable copy of instructions. On the other hand, DNA is the original copy that needs to be kept in good condition. तो आरएनए जो है वो एक डिस्पोजेबल कॉपी है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, जबकि डीएनए जो है वो ओरिजिनल कॉपी है टू बी केप्ट इन अ गुड कंडीशन. तो हेयर इन द डायग्राम यू कैन सी डैट सबसे पहले क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो क्या करता है, अनवाइंड करता है, ठीक है. और यहाँ पे जो है आरएनए पॉलीमरेज जो वो अटैच करता है डीएनए के साथ. जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो वो अटैच करेगा डीएनए के साथ, वहाँ पे जो है वो फिर एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटैच होना शुरू कर देगा फॉर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड. तो इस तरह से जो है वो डीएनए जो है वो कन्वर्ट होना शुरू होता है एमआरएनए के अंदर.
तो ये प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप्स में होता है, जैसे रेप्लिकेशन में होता है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि 3 स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशंस क्या हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम एक लेक्चर में देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द जनरल व्यू ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन के एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, उसमें कौन से बेसिक स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या रोल प्ले करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और फिर हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स जस्ट लाइक रेप्लिकेशन, जैसे रेप्लिकेशन में होता है इनिशिएशन है, फिर एलोंगेशन है, देन टर्मिनेशन है, ठीक है। तो किस तरह से जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टॉप होता है। तो दैट इज़ द जनरल व्यू ऑफ द transcription. So generally what happened during the transcription, the RNA polymerase moves down the strand of DNA। जो RNA polymerase है, जस्ट लाइक आपने DNA polymerase देखा कि वो रेप्लिकेशन फोर के साथ साथ जो है वो मूव करता रहता है और न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो ऐड करता है। सिमिलरली RNA polymerase जो है वो इट मूव्स डाउन द स्ट्रैंड ऑफ DNA एंड इट असेंबल द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द RNA। तो वो RNA जो है वो एड अप करता रहता है, दैट इज़ कम्प्लीमेंट्री टू द DNA strand। So the DNA and RNA are very much similar and can store information in nearly identical way। तो इनकी similarities जो हैं वो बहुत ज़्यादा है और इनमें genetic information को store जो है वो तकरीबन एक जैसा ही करते हैं। When the RNA polymerase is down, transcribing the final product is called the messenger RNA। तो जो सबसे पहला RNA बनता है that is the messenger RNA। हमें पता है कि RNA है R3 types, messenger RNA, ribosomal RNA and the transfer RNA। So the first RNA that formed during the transcription is the messenger RNA। तो RNA polymerase जो है वो ट्रांसक्राइब करता है DNA genetic information को into the messenger RNA। So this molecule leaves the nucleus and carries the genetic information to the cytoplasm। तो जब ये messenger RNA की फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में होती है। तो आफ्टर फॉर्मेशन वो क्या होता है, जब इसकी टर्मिनेशन होती है तो वो न्यूक्लियस को छोड़ के कहाँ पे आ जाता है, साइटोप्लाज्म में। देयर इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। तो जो प्रोटीन ट्रांसलेशन है वो फॉर्मेशन और जो ट्रांसलेशन है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। सो दिस इज़ द जनरल व्यू ऑफ द प्रोसेस एंड इट इज़ इन रियलिटी इट इज़ मच मोर कम्प्लेक्स। यानी कि जितना सिंपली हमें लगता है उतना सिंपल ये है नहीं। तो डिटेल में हम जो है वो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।